Hello everyone, this is Rachna Rai Sharma, Assistant Professor, Community Health Nursing. Today we will discuss about World Health Organization. Before discussing World Health Organization as international health agency, we must know what are international health agencies, what are their types. So just a brief discussion about international agencies. If we see the globally, health challenges are multitude in nature. There are lots of health challenges we can face. Their scope and intensity are different. So no single country or agency can tackle or find solution for this. Multiple international agencies and institutions are there to extend their help and cooperation in shaping the global health policies, funding, implementation and evaluation of the programs that work for international health. So these international health agencies are categorized into three groups. First one is multilateral agencies or organization, second one is bilateral organization, and a third one is non-governmental organization. So first one, multilateral agencies जो होती हैं, these type of agencies receive fund from multiple governments and non-government resources or sources and distribute among many different countries. ठीक है, इसके बहुत सारे जो funds के sources होते हैं, बहुत सारे गवर्नमेंट इनको फंड्स प्रोवाइड कराती है, बहुत सारी नॉन गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन या सोर्सेज हैं वो फंड प्रोवाइड कराते हैं, और ये उस फंड को सभी कंट्रीज़ में जहाँ ज़रूरत है वहाँ डिस्ट्रीब्यूट करते हैं फॉर द सेक ऑफ हेल्थ activities. For example, WHO. So WHO comes under multilateral agency, and another example is World Bank, UNICEF. ठीक है. Second one is bilateral organization. So this bilateral organization is a governmental agency or non-profit organization based in a single country, okay, and provides funding to developing countries. इसका जो बेस होता है ये कोई एक कंट्री स्टार्ट करती है इसे, ठीक है, वो फंड जो है रेज करती है फंड को, और उस फंड को यूटिलाइज़ किया जाता है कहाँ, डेवलपिंग कंट्रीज़ की हेल्थ रिसोर्सेज के लिए यूटिलाइज़ करते हैं. फॉर एग्जांपल, यूनाइटेड स्टेट एजेंसी फॉर इंटरनेशनल डेवलपमेंट एंड CDC, सेंटर फॉर डिजीज़ कंट्रोल एंड प्रिवेंशन. ठीक है. थर्ड वन है जो हमारा नॉन गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन या NGOs. These are non-profit, task-oriented, voluntarily active citizens group that is organized at the local, national and international level. For example, CARE, 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 ये सुना है आपने, राइट? तो केयर हो गया. देन उसके बाद हमारा जो है ये इंटरनेशनल जो लेवल्स हैं, कई NGOs, अलग अलग NGOs भी होते हैं इसके लिए, राइट? नाउ कमिंग टू WHO, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन. सो टुडे वी डिस्कस ओनली दिस वन. World Health Organization is a specialized agency of United Nations. WHO was established on 7th April 1948. The headquarters of WHO is located in Geneva. WHO serves as a directing and coordinating authority for international health matters and public health. जितनी भी public health से related matters होते हैं और international health matters होते हैं उनको डायरेक्ट और कोऑर्डिनेट करते हैं, उसकी अथॉरिटी WHO के पास है. If we see the history of WHO, first global health organization है ये. In later half of 19th century, यानी 19th century के लास्ट के हाफ जो टाइम है उसमें सीवियर कॉलेरा एपिडेमिक्स वॉज अकर्ड, फेमाइन जो हुआ था एट द टाइम. सीरीज ऑफ इंटरनेशनल
Sanitary conferences were held in Europe to coordinate policy and practice around quarantine and disease management. इसके जो है पॉलिसीज़ और प्रैक्टिस को कोऑर्डिनेट करने के लिए यूरोप में एक इंटरनेशनल सैनिटरी कॉन्फ्रेंस हुई, कई दिनों की सीरीज़ ऑफ कॉन्फ्रेंसेस थी वो. डिस्कशन का टॉपिक क्या था? क्वारंटाइन एंड डिजीज़ मैनेजमेंट के लिए पॉलिसीज़ और प्रैक्टिस बनानी थी. सो द लीग ऑफ नेशंस एस्टैब्लिश्ड अ हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन इन 1920. सो 1945 में यूनाइटेड नेशंस का जो एस्टैब्लिशमेंट हुआ उसने it was marked as a period of aggressive internationalism and international organization building, and though health was not initially thought to be under the United Nation. जब 1945 में यूनाइटेड नेशन जब एस्टैब्लिश हुआ उस टाइम पे हेल्थ को प्रायोरिटी नहीं दी गई थी, बस इंटरनेशनल अफेयर्स जो है वो डिस्कस होते थे उस टाइम. आफ्टर दिस मोशन स्टार्टेड बाय ब्राज़ीलियन एंड चाइनीज़ डेलीगेट्स टू एस्टैब्लिश एन इंटरनेशनल हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन एंड दैट वाज जनरली एक्सेप्टेड. उसके बाद जब ये शुरू हुआ जो फेमाइन वाला जो आपका था, तब ये चीज़ ध्यान में आई कि ब्राज़ील इन्होंने ये प्रपोज़ किया, ब्राज़ील ने और चाइना ने, कि वहाँ के जो डेलीगेट्स थे कि एक इंटरनेशनल हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन बनना चाहिए, और ये सब ने एक्सेप्ट भी किया. अ ग्रुप ऑफ हेल्थ एक्सपर्ट वर्किंग ऑन emergency relief in World War II were charged with the task of drafting a constitution to define the structure and mandate of the body that would become known as the World Health Organization. ठीक है, कुछ हेल्थ एक्सपर्ट्स थे, उनका ग्रुप क्रिएट किया गया, वो इस चीज़ पे काम करने लग गए जो वर्ल्ड वार 2 के लिए काम कर रहे थे. तो उनको ये चार्ज दिया गया कि ड्राफ्टिंग का काम उनको दिया गया कि जो ऑर्गेनाइजेशन बनेगी, जो इंटरनेशनल हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन बनेगी, उसका स्ट्रक्चर को ड्राफ्ट करना था, उसकी बॉडी को ड्राफ्ट करना था. तो ये काम उनको दिया गया, और इसी स्ट्रक्चर को हम अब कहते हैं वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन. फाइनली WHO's constitution came into force on 7th April 1948. This date celebrates every year as World Health Day by all over the world. Now, what are the objectives of WHO? To develop and implement multi-sectorial public policies for health, integrated gender and age-sensitive approaches that facilitate community empowerment, together with action for health promotion, self-care and health protected throughout the life course in cooperation with relevant national and international partners. Coming to the organizational structure of WHO, there is first is World Health Assembly. So, और यू कैन से पार्लियामेंट. ठीक है, वर्ल्ड हेल्थ असेंबली को हम पार्लियामेंट भी कहते हैं. सो वर्ल्ड हेल्थ असेंबली इज़ द सुप्रीम डिसीजन मेकिंग बॉडी फॉर WHO. इट जनरली मीट्स इन जेनेवा इन मे ईच ईयर. हर साल मई में मीटिंग होती है जेनेवा में, एंड इज़ अटेंडेड बाय डेलीगेशंस फ्रॉम ऑल 194 मेंबर स्टेट्स. इसके जो 194 मेंबर्स हैं उनके द्वारा उनके डेलीगेट्स होते हैं, वो ये मीटिंग अटेंड करते हैं हर साल मई में. ठीक है, उसके बाद दूसरा जो है हमारा एग्जीक्यूटिव बोर्ड होता है, तीसरा जो होता है हमारा सेक्रेटेरिएट होता है. 3 इसके ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर के पार्ट्स हैं. तो पहला हम पढ़ रहे हैं वर्ल्ड हेल्थ असेंबली. इसके डायरेक्टर जनरल जो अभी हैं, करंट डायरेक्टर जनरल ऑफ WHO इज़ डॉक्टर टेड्रस एधनम. ये एक यूथोपियन नेशनलिस्ट है हु स्टार्टेड हिज 5-year टर्म ऑन 1 July 2017. डिप्टी डायरेक्टर जनरल जो हैं डॉक्टर सुजेना जैकब, डिप्टी डायरेक्टर जनरल. शी इज़ द नेटिव ऑफ हंगरी and appointed as Deputy Director General in 2019. Now Dr. स्वामीनाथन है वहाँ पे चीफ साइंटिस्ट जो है WHO की.
since March 2019. Previously, from October 2017 to March 2019, she was the Deputy Director General of Programs at WHO. Dr. Swaminathan was Secretary to the Government of India for Health Research and Director General of Indian Council of Medical Research from 2015 to 2017. Now जो second है part organizational structure का, that is World Health Assembly. So the main functions of first. So the main functions of World Health Assembly are to determine international health policy and program, to review the work of past years, to approve the budget, to elect member state, to designate a person to serve for 3 years on executive board. जो एग्जीक्यूटिव बोर्ड के मेंबर्स हैं उनका जो वर्क पीरियड होता है वो 3 साल का होता है, तो उनको इलेक्ट करने का काम असेंबली का होता है. असेंबली के जो मेंबर्स हैं वो इसको इलेक्ट करते हैं. सुपरवाइजेस द फाइनेंशियल पॉलिसीज ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन एंड रिव्यूज़ एंड अप्रूव्स द प्रपोज्ड प्रोग्राम बजट. जितने भी फाइनेंशियल जो पॉलिसीज़ हैं उसको सुपरवाइज करना, और जो भी प्रोग्राम के लिए जो प्रपोज़ल आया है उसके लिए बजट को अप्रूव करना, ये भी काम जो है वर्ल्ड हेल्थ असेंबली का होता है. उसके बाद आता है सेकंड हमारा एग्जीक्यूटिव बोर्ड. एग्जीक्यूटिव बोर्ड इज़ कंपोज्ड ऑफ 34 मेंबर्स टेक्निकली क्वालिफाइड इन द फील्ड ऑफ हेल्थ. मेंबर्स आर इलेक्टेड फॉर 3 years term. The main function of the board are to give effect to the decisions and policies of the health assembly, to advise it and generally to facilitate its work. जो वर्ल्ड हेल्थ असेंबली ने जितनी भी डिसीजंस और पॉलिसीज़ बनाई हैं रिलेटेड टू हेल्थ, वो एग्जीक्यूटिव बोर्ड का काम होता है इसको एग्जीक्यूट कराना. ठीक है, तो 3 साल का इनका वर्क पीरियड होता है और 34 मेंबर्स इसमें होते हैं फ्रॉम टेक्निकली जो भी अलग अलग फील्ड है हेल्थ के. Union Health Minister Dr. Harshvardhan took charge as the chairman of World Health Organization Executive Board. जो हमारे यूनियन हेल्थ मिनिस्टर हैं डॉक्टर हर्षवर्धन, वो WHO के एग्जीक्यूटिव बोर्ड के चेयरमैन भी हैं. द 147th एग्जीक्यूटिव बोर्ड मीटिंग ऑफ द WHO held on May 22, 2020. Executive board is composed of 34 technically qualified individuals in the field of health. Functions of executive board are to give effect to policies of health assembly. So third आता है हमारा secretariat. Secretariat of WHO is staffed by some 8,000 health and other experts and support staff on fixed term appointment. ठीक है, इनकी जो है फिक्स टर्म अपॉइंटमेंट होती है और लगभग 8,000 के करीब हेल्थ से रिलेटेड या अदर एक्सपर्ट टेक्निकल एक्सपर्ट्स जो होते हैं आईटी से रिलेटेड और सपोर्ट स्टाफ जो है सारे ये सेक्रेटेरिएट में आते हैं. ये हेडक्वार्टर्स में काम करते हैं, वर्किंग एट हेडक्वार्टर्स इन द 6 रीजनल ऑफिसेस. देयर आर 5 असिस्टेंट डायरेक्टर जनरल एंड देयर रिस्पॉन्सिबिलिटीज असाइंड बाय डायरेक्टर जनरल इन डिफरेंट डिवीजन्स. ठीक है, तो रीजनल ऑफिस कहाँ कहाँ हैं? 6 WHO के, और उनके हेडक्वार्टर्स कहाँ हैं? अफ्रीकन रीजन जो है अफ्रीकन रीजन में अगर हम देखें WHO का हेडक्वार्टर है ब्राज़ाविल कॉन्गो में. उसके बाद है रीजन ऑफ द अमेरिका, ये है वॉशिंगटन USA में. साउथ ईस्ट एशिया रीजन का जो WHO का ऑफिस है हेडक्वार्टर वो है न्यू दिल्ली में. ठीक है, और यूरोपियन रीजन का है कोपेनहेगन डेनमार्क में. देन ईस्टर्न मेडिटेरेनियन रीजन में अगर हम देखें तो इजिप्ट में है इसका हेडक्वार्टर कायरो. देन वेस्टर्न पैसिफिक रीजन का मनीला फिलीपींस में है. विज़न क्या है WHO का? द अटेनमेंट ऑफ हेल्थ बाय ऑल पीपल. ठीक है,
जो हाईएस्ट लेवल ऑफ हेल्थ है सभी लोगों को उसको अटेन करना है. दैट इज़ द विजन ऑफ WHO मिशन to lead strategic collaborative efforts among member states and other partners to promote equity in health, to combat disease and to improve the quality of and lengthen the lives of all the people in the world. ठीक है, जो member states हैं 34 और दूसरे पार्टनर्स हैं इससे रिलेटेड, उनके बीच में कोलैबोरेशन रखना ताकि हम हेल्थ में जो है हेल्थ में प्रमोट इक्विटी को, यानी जो इक्वालिटी है उसको हम प्रमोट कर सकें. सभी जो है कंट्रीज़ सेम होने चाहिए उनके लिए. दूसरा, डिजीज़ को कॉम्बैक्ट करना. और तीसरा, जो लाइव्स हैं सभी लोगों की उनको लेंथन करना और उनकी क्वालिटी को इम्प्रूव करना. Then functions of WHO: prevention and control of specific diseases, development of comprehensive health services to improve the family health, environmental health, health statistics, biomedical research, assembling of health literature and information, cooperation with other organizations to get the equilibrium in improved health status. ठीक है, ये सारे काम होते हैं WHO के. देन व्हाट इज़ द डेफिनेशन ऑफ हेल्थ अकॉर्डिंग टू WHO? हेल्थ इज़ द स्टेट ऑफ कंप्लीट फिजिकल, मेंटल एंड सोशल वेलबींग एंड नॉट मेयरली द एब्सेंस ऑफ डिजीज़ और इन्फॉर्मिटी. आप फर्स्ट ईयर से पढ़ते आ रहे हो इसे. देन WHO का जो लोगो है, इट वॉज चूजन बाय फर्स्ट वर्ल्ड हेल्थ असेंबली इन 1948. द लोगो कंसिस्ट ऑफ यूनाइटेड नेशन सिंबल सरमाउंटेड बाय अ स्टाफ विद ए स्नेक कॉइलिंग अराउंड इट. ठीक है, द स्टाफ विद द स्नेक हैज़ लॉन्ग बीन अ सिंबल ऑफ मेडिसिन एंड द मेडिकल प्रोफेशन, यू ऑल नो. देन कंपैरेटिव एडवांटेजेस क्या हैं? ये एक न्यूट्रल ऑर्गेनाइजेशन है जितने भी इसके मेंबर स्टेट हैं उनके लिए, जितने भी कंट्रीज़ इन्वॉल्व हैं उनके लिए. नियरली यूनिवर्सल मेंबरशिप जो है इसकी होती है. उसके बाद है ग्लोबल प्रेजेंस और नेटवर्किंग इसकी बहुत ज़रूरी है और ये इसकी नेटवर्किंग काफ़ी इफ़ेक्टिव है. नो पैरेलल ऑर्गेनाइजेशन इन टैकलिंग डिजीज़. इसके अलावा कोई भी ऐसी कॉम्पिटिटिव ऑर्गेनाइजेशन नहीं बनी है अभी तक जो इसका मुकाबला कर सके. ठीक है, तो जो डिजीज़ को टैकल कर सके. लार्ज नंबर ऑफ एक्सपर्टीज़ इन ऑल हेल्थ इश्यूज़. इसमें बहुत सारे हेल्थ एक्सपर्ट्स हैं जो इन्वॉल्व होते हैं, मेंबर्स होते हैं. ठीक है, जो सभी हेल्थ इश्यूज़ में एक्सपर्टीज़ अपनी देते हैं. उसके बाद है स्ट्रॉन्ग कोऑर्डिनेशन एंड कन्विंसिंग एबिलिटी. जो WHO का नाम ही काफ़ी होता है. ठीक है, तो ये एक तो आपस में सब कंट्रीज़ में और मेंबर्स में कोऑर्डिनेशन रखता है और दूसरा इसकी कन्विंसिंग एबिलिटी बहुत ज़्यादा है. WHO ने बोल दिया दैट इज़ फाइनल, उसका नाम ही काफ़ी है. स्ट्रॉन्ग फंड कलेक्टिंग एबिलिटी. इसकी जो फंड कलेक्टिंग एबिलिटी है, फंड रेजिंग एबिलिटी है, वो काफ़ी स्ट्रॉन्ग है. ठीक है, जो अच्छे कंट्रीज़ हैं वहाँ से फंड रेज, जो वेल डेवलप्ड जो कंट्रीज़ हैं वहाँ से फंड रेज किया जाता है. देन ग्लोबल कोऑपरेशन, कोलैबोरेशन एंड इन्वेस्टमेंट जो है इसकी होती है. मेंबर स्टेट मेंबरशिप इनटू WHO इज़ ओपन टू ऑल कंट्रीज़. All countries that are part of United Nations are also members of WHO. WHO Global Service Centers. WHO के जो ग्लोबल सर्विस सेंटर हैं वो इंटीग्रल पार्ट होते हैं WHO की ग्लोबल स्ट्रेटजी का. इन हेल्पिंग WHO टू डिलीवर इट्स ग्लोबल मैंडेट एंड इम्प्लीमेंट इट्स प्रोग्राम इन ए टाइमली एंड कॉस्ट इफेक्टिव मैनर. एजेंडा क्या है? जो WHO ग्लोबल सर्विस सेंटर है उसका एजेंडा: प्रमोटिंग डेवलपमेंट, encouraging health security, strengthening health system, encouraging research, information and evidence, enhancing partnerships and improving performance of health developing organization. Sorry, there is a spelling mistake in developing organization. Then role of WHO in public health. What is the role? Firstly, it provides leadership on matters critical to health and engaging in partnership where joint action is needed. So,
जहाँ कहीं भी कोई हेल्थ से रिलेटेड क्रिटिकल मैटर है, ये वहाँ पे अपनी लीडरशिप प्रोवाइड कराता है, और कोई भी जॉइंट एक्शन की ज़रूरत है तो वहाँ पे पार्टनरशिप में भी एंगेज रहता है। उसके बाद है शेपिंग द रिसर्च एजेंडा, रिसर्च पे फोकस करता है। देन स्टिमुलेटिंग द generation, translation and spreading of valuable knowledge. Then setting norms and standards and promoting and monitoring their implementation. जितने भी नॉर्म्स और स्टैंडर्ड्स हैं उनको सेट करना, उनको प्रमोट करना और इम्प्लीमेंटेशन को मॉनिटर करना, सुपरवाइज करना। उसके बाद है आर्टिकुलेट एथिकल एंड एविडेंस बेस्ड पॉलिसी ऑप्शंस। जितने भी एविडेंस बेस्ड पॉलिसी ऑप्शंस हैं या जितनी भी एविडेंस बेस्ड प्रैक्टिसेस हैं, जो एथिक्स बनाए गए हैं, उनको आर्टिकुलेट कराना इसका काम है। देन प्रोवाइडिंग टेक्निकल सपोर्ट, कैटलाइजिंग चेंज एंड बिल्डिंग सस्टेनेबल इंस्टीट्यूशनल कैपेसिटी, ये भी इसका काम है। देन मॉनिटरिंग द हेल्थ सिचुएशन एंड एसेसिंग हेल्थ ट्रेंड्स, जो भी हेल्थ ट्रेंड चल रहे हैं उनको एसेस करना और हेल्थ सिचुएशन को मॉनिटर करते रहना। दिस इज ऑल्सो सो व्हाट इज द कंक्लूजन? ऑल्दो WHO has both opportunities and challenges, its contribution is great to increase the quality of life and living standards globally. Thank you so much. This is all about today.